Before diving into today's lecture, let's revise the previous one. We had a total of 3 types of variation in red blood cell morphology. The first one was according to the cell size, that was called anisocytosis. The second one was according to hemoglobin content, that is normally referred to as chromasia of the cell or chromic properties of the cell. And the third one was according to the shape of the red blood cells, and that was called poikilocytosis. Among all the three, we had studied the first type, that was anisocytosis. और उसके फर्दर 3 टाइप्स थे, माइक्रोसाइटिक सेल्स एंड नॉर्मोसाइटिक सेल्स। उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी कि माइक्रोस्कोपी में किस तरह नजर आते हैं, और उनके फीचर्स पढ़े थे कि किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, और उनके रिलेटेड कंडीशंस पढ़े थे कि कौन कौन सी बीमारियों में ये होते हैं। In today's lecture, we would be covering the second type of red blood cell variation, that is variation in hemoglobin content, और इसको normally the chromic properties or chromasia properties of the cells consider किया जाता है। The first type in hemoglobin content variation is hypochromasia. So as the name indicates, hypo, that means less than normal, and chromasia, that normally means that is related to color. So hypochromasia, less than normal color of a red blood cell, would be termed as hypochromasia or hypochromic cell. The cell would be a hypochromic cell and the condition would be hypochromasia. If you look at this cell here, there's a bit of a change in this cell related to the previous cells. I'll be changing the slide after I complete recording for this slide, and then I'll be comparing the two cells. इधर लिखा है increase in the red cell pallor color. Increase in the red cell pallor color. Pallor color मतलब जो उसका central white area है, अगर ये normal से बढ़ जाए तो उस cell को फिर हम normally कहते हैं hypochromic cells, ठीक है? Which occupies more than the normal 1/3 or the normal third of the red blood cell diameter. इन द प्रीवियस लेक्चर्स जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे नॉर्मल ऑफ रेड ब्लड सेल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि द पेलर कलर इज 1/3 ऑफ द नॉर्मल रेड ब्लड सेल, व्हाइल द रेड कलर और द हीमोग्लोबिन ऑक्युपाइड एरिया इज नॉर्मली द 2/3 ऑफ द सेल। मतलब अगर सेल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसमें से एक हिस्सा जो है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और उसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस वाइट होती है, पेलर कलर होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द सेल आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। If you pay attention here to this cell, इसमें hemoglobin कम है compared to a normal cell, that is this one, or compared to a cell that is normal right here, this one. So this cell is normal. If you look at this cell here, this one is a normal cell, while the one encircled in red is an abnormal cell according to the hemoglobin content. और साफ नजर आता है कि एक में सेंट्रल पैलर एरिया कम है और दूसरे में सेंट्रल पैलर एरिया जो है वो ज्यादा है। अब ये किस किस कंडीशन में पाया जाता है? तो द फर्स्ट कंडीशन एसोसिएटेड विद इट इज आयरन डिफिशियंसी और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ऑब्वियस सी बात है, आयरन बॉडी में कम हो तो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था वो अफेक्ट होगा। द सेकंड वन इज थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया में भी हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। एंड द थर्ड कंडीशन इज लीडिंग एनी कंडीशंस लीडिंग टू माइक्रोसाइटोसिस। तो जब भी बॉडी में माइक्रोसाइटोसिस एक्सपेक्टेड हो तो वी वुड बी एक्सपेक्टिंग कि अब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है रेड ब्लड सेल का वो अफेक्ट होगा। So the second type of hemoglobin content variation is polychromasia, or other term used for this is hyperchromasia. There's a bit of a difference between the two terms, polychromasia and hyperchromasia. In hyperchromasia, the cell content, the HB content of a single cell increases, जिसमें normally उसका जो central pallor होता है वो कम हो जाता है। And in such condition, जो CBC होती है उसमें HB का जो content होता है वो ज़्यादा आता है normal से। For example, हमने पढ़ा था 15 तक या 18 तक for females and males respectively, तो वो उससे बढ़ के आता है, फिर उससे ज़्यादा होता है, 15 या 18 से ज़्यादा आता है। इन सच कंडीशन हम हाइपरक्रोमेजिया उसको रेफर करते हैं। और इन अ कंडीशन जिसमें सेल के अंदर एक्स्ट्रा कलर्स आ जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचबी और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एचबी, तो उस कंडीशन में फिर हम उसको पोलीक्रोमेजिया बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है? Morphology उसकी ये है, red cells stain shades of blue-gray as a consequence of uptake of both stains eosine of hemoglobin and basic dye is often slightly larger than normal red cells and are round in shape, round macrocytosis। अच्छा, दो टर्म्स यहाँ पे डिफाइंड हो गए हैं, एक शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से, और एक एचपी के लिहाज से। शेप एंड साइज एंड एचपी के लिहाज से।
पहले क्या बात हो गई कि उस सेल का जो अपीयरेंस होगा वो उसमें ब्लू शेड्स आ जाते हैं, ब्लू ग्रे शेड्स आ जाते हैं। लुक एट दिस सेल हेयर। और ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू दिस सेल, दिस इज स्टिल पिंकिश इन कलर, वाइल दिस सेल इज ब्लू इन कलर। लगता ही नहीं है कि ये सेल जो है हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है, और दिस सेल लगता ही नहीं है कि ये दो सेल्स रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें इन सब सेल्स पे, तो इनका सेंट्रल जो पेलर एरिया है वो बिल्कुल कम है, या कुछ सेल्स में बिल्कुल है ही नहीं। लुक एट दिस सेल, तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो इन कंडीशन हम सेल को, अगर ये सेल है जिसका सिर्फ एचबी कंटेंट ज्यादा है, सेंट्रल पेलर नहीं है, तो इसको हम हाइपरक्रोमेजिया बोलते हैं। बट दिस सेल जिसमें एक्स्ट्रा कलर आ गया, तो इसको पॉलीक्रोमेजिया बोलते हैं। या ये सेल जिसमें एक्स्ट्रा कलर आ गया, तो इसको पॉलीक्रोमेजिया बोलते हैं। दीज सेल्स जिसमें एक्स्ट्रा कलर आ गया, इनको पॉलीक्रोमेजिया रेफर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्लिनिकल लैंग्वेज में पॉलीक्रोमेजिया और हाइपरक्रोमेजिया इज द सेम थिंग, इंडिकेटिंग के रेड रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल से ज्यादा है। कौन कौन सी कंडीशंस में पाया जाता है? तो एनी सिचुएशन वेयर रेटिकुलोसाइटोसिस अकर्स, कोई भी इस तरह की कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल सॉरी इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेशन में उनकी सर्कुलेशन में उनकी जो नंबर है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, विच इज नॉर्मली लेस देन 1% फॉर रेटिकुलोसाइट्स। लेकिन इन सच कंडीशंस जिसमें रेटिकुलोसाइट्स की काउंट वन लेस देन 1% से ज्यादा हो जाए, मतलब 1% से कम होने चाहिए ब्लड में, लेकिन वो 1 से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में फिर हमारे पास जितने भी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर्स बनते हैं, उसमें हमारे पास चांसेस होते हैं कि पॉलीक्रोमेजिया आ जाए। वाई? बिकॉज ऑफ द इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट इन द सेल्स, ठीक है ना। इमेच्योर में ऑलरेडी कुछ डीएनए कंटेंट होता है, और उसमें कुछ हीमोग्लोबिन या तो पूरा बना नहीं होता है, या नॉर्मली उस सेल की साइज कम होती है, और सॉरी सेल की साइज ज्यादा होती है, और उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो इसलिए इधर लिखा भी है कि शेप के लिहाज से राउंड मैक्रोसाइटोसिस यूजुअली यहाँ पे पाई जाती है। Nonsense. Among the three types, the third type was variation according to red blood cell shape, और उसको हम पोइकिलोसाइटोसिस कहते थे। तो पोइकिलोसाइटोसिस के अंदर फर्दर कोई 11 से 13 तक के टाइप्स है, और इंशाल्लाह उन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट टाइप हियर इज कॉल्ड अ टारगेट सेल। एज द नेम इंडिकेट्स, इट लुक्स लाइक अ टारगेट ऑफ आर्चरी। अगर आपने आर्चरी देखी हो तो देयर इज यूजुअली आर्चरी को छोड़ भी दे, तो अगर आपने डार्ट्स देखे हो, डार्ट्स में यूजुअली एक बुल्स आई होता है सेंटर में, और फिर उसके इर्द गिर्द व्हाइट और ब्लैक लाइंस होते हैं। तो उसी के साथ कंपेयर करके यहाँ पर कहा गया है कि इसमें टारगेट सेल्स होते हैं। इफ यू लुक एट दिस सेल हियर, दिस इज अ नॉर्मल रेड ब्लड सेल, जिसमें सेंट्रल पेरल एरिया है और पेरिफेरीज में उसका रेड सेंड साइज है। लेकिन साथ में ही जो यहाँ पे सेल है, देखिए इसमें सेंट्रली एक डॉट है हीमोग्लोबिन का, और फिर उसके इर्द गिर्द एक वाइट लेयर है, पेलर एरिया है, और फिर उसके इर्द गिर्द एक और रेड एरिया है। तो दिस सेल इज कॉल्ड अ टारगेट सेल। ऊपर वाले स्लाइड में, ऊपर वाले माइक्रोस्कोपिक फील्ड में जितने भी सेल्स हैं, वो सारे क्या है? टारगेट सेल्स है। व्हाट इज अ टारगेट सेल? सो रेड सेल्स हैव एन एरिया ऑफ इंक्रीज्ड स्टेन्स which appear in the central area of in the area of central pallor। नॉर्मली क्या होगा कि सेल की पेरिफेरी रेड होगी और सेंटर वाइट होगा, लेकिन इन दिस केस पेरिफेरी भी रेड होगी, और सेंटर वाइट के जो सेंटर वाइट होगा उसके फर्दर सेंटर में एक डार्क रेड स्पॉट होगा, एज सीन इन दी स्लाइड्स। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? टारगेट सेल कहते हैं। और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये पाया जाता है? तो द फर्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीजेस। लिवर डिजीज में बहुत सारे टाइप्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, सिरोटिक है, और लिवर की मॉर्फोलॉजी खराब हो जाए। ऑब्स्ट्रक्टिव वो डिजीज होते हैं जिसमें लिवर के जो ट्यूब की डिलीवरी सिस्टम होती है, जिससे लिवर का, गॉल ब्लैडर का या पेंक्रियास का, वो जो उनका उनके अंदर फ्लूइड होता है दैट फ्लोज टू द इंटेस्टाइन्स और टू बाइल, थ्रू बाइल। तो वो जो जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल पे इफेक्ट आएगा, वो ये आएगा कि रेड ब्लड सेल टारगेट सेल बन जाएंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्फेरिकल सेल्स, ठीक है। और सेकंड कंडीशन, सिवियर आयरन डिफिशिएंसी आ जाए, बॉडी के अंदर सिवियर आयरन डिफिशिएंसी आ जाए। द थर्ड इज थैलेसीमिया, एंड द लास्ट वन इज हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो हीमोग्लोबिनोपैथी इज अ कंडीशन जिसमें नॉर्मली, पैथीज इज फॉर पैथोलॉजी, ऑलरेडी पढ़ा होगा उसमें, जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह हमारे पास पैथोजेनिक हीमोग्लोबिन आ जाता है। जहाँ जिस तरह यहाँ पे दो टाइप्स लिखे, एस एंड सी। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनता है, तो उसको हम हीमोग्लोबिन एस एंड सी बोलते हैं, या हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं नॉर्मली। जिस तरह हीमोग्लोबिन एच नॉर्मल है, या हीमोग्लोबिन ए टू नॉर्मल है, इस तरह हीमोग्लोबिन एस एंड सी
ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एबनॉर्मल टाइप्स हैं, वो फोर्थ सेमेस्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर। The next type of poikilocytosis is ovelocytes or ovelocytosis. तो as the name indicates, cytes is for cell and ovelo is for shape. तो instead of a normal spherical biconcave cell, इसमें हमारे पास oval shape में सेल होता है। oval shape तो जानते हैं ना, अंडे की शेप, ठीक है। और oval shape red blood cell किस तरह होता है? This is a typical oval shape red blood cell, ठीक है। Here's another typical oval shape red blood cell. Here's another one typical oval red blood cell shape, ठीक है। और कौन कौन सी कंडीशन में ये होते हैं? तो थैलेसीमिया मेजर में पाया जाता है। थैलेसीमिया के टाइप्स पढ़ेंगे, व्हाट इज थैलेसीमिया मेजर, उधर पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें नॉर्मली हेरिडेटरी ओवेलोसाइटोसिस हो जाती है। मतलब दिस इज जेनेटिक, कोई अदर काज नहीं है, ना थैलेसीमिया है, ना आयरन डिफिशियंसी है, ना सिकल सेल एनीमिया है। दिस इज जस्ट इन द जीन्स के उस बॉडी के अंदर सिर्फ ओवेलोसाइट्स ही बनेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप इज सिकल सेल एनीमिया। The next type of poikilocytosis is elliptocytosis. Ellipsis is normally a shape जो ना राउंड होता है ना ओवल, बल्कि इलोंगेटेड होता है रेक्टेंगल की तरह, और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं सर्कल की तरह। तो उस शेप को एलिप्सिस बोलते हैं। जिस सेल के यहाँ पर एरो है, इस एरो को अगर आप देखें इस सेल को, तो दिस इज elongated, दिस सेल हियर इज elongated और राउंड इन कॉर्नर्स, ठीक है। तो इसको एलिप्टिकल सेल बोलते हैं। और जब रेड ब्लड सेल्स की शेप या मॉर्फोलॉजी इस तरह हो जाए तो उसको एलिप्टिकल आरबीसीज बोलते हैं। और कौन सी कंडीशन में पाया जाता है? तो हेरिडेटरी एलिप्टोसाइटोसिस कंडीशन है। जिस तरह हेरिडेटरी ओवेलोसाइटोसिस था, या जिस तरह हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस होगा, इसी तरह हेरिडेटरी एलिप्टोसाइटोसिस भी है कि बॉडी के अंदर कोई मसला नहीं है, सिर्फ उस बंदे के, उस सब्जेक्ट के, उस पेशेंट के जीन्स इस तरह है कि उसकी बॉडी एलिप्टिकल सेल्स बना सकती है, नॉर्मल नहीं बना सकती, ठीक है। सेकेंड वन इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जब बॉडी के अंदर आयरन डिफिशियंसी आ जाए, या विटामिन B12 की या B90 डिफिशियंसी आ जाए, जिसकी वजह से मेगलोब्लास्ट बनते हैं, नॉर्मल से बड़े सेल्स बनते हैं। द थर्ड वन आयरन डिफिशियंसी एंड द फोर्थ वन इज थैलेसीमिया। तो ये आगे जाके एनीमियाज में पढ़ेंगे इनको फर्दर, कि ये क्या, कौन कौन सी एनीमिया के क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पर सिर्फ ये याद रखें कि एलिप्टोसाइटोसिस किस किस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। Okay, so the next variation is teardrop cell in poikilocytosis. As the name indicates, these cells in microscope looks like a teardrop, or sometimes it is referred to as pear-shaped. As it says in the definition, red cells shape like a tear drop or a pear shape. And in which conditions are these found? So the first one is bone marrow fibrosis. Fibrosis is a condition in which the elasticity of an organ is depleted. The elasticity of bone marrow is the stem cells और blast cells, मतलब वो सेल्स जो बोन मैरो को स्पेशल बनाती है, स्टेम सेल्स या ब्लास्ट सेल्स, जिसकी वजह से बोन मैरो की जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो होती है, तो उनकी वो एबिलिटी खत्म हो जाती है, और इस कंडीशन को फिर फाइब्रोसिस कहा जाता है। The second condition is megaloblastic anemia, the third one is iron deficiency anemia, and the last one is thalassemia, and we'll be discussing them all in anemias in detail. This next variation is called blister cells. It is a type of poikilocytosis, and blisters normally have eccentric hollow area. Normally अगर हम एक सेल की बात करें, स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल, तो उसमें क्या होता है कि एक राउंड सेल होता है और उसके सेंटर में एक पैलर कलर होता है। दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। लेकिन इन ब्लिस्टर सेल हम क्या करते हैं कि उसका जो एसेंट्रिक हॉलो एरिया होता है, सेंटर में उसकी पैलर कलर तो होती है, लेकिन वो एसेंट्रिक होती है। एसेंट्रिक मतलब उस बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, सेंटर से एब्सेंट रहता है। जिस तरह का अगर आप इस सेल को देखें यहाँ पर, तो इसका ये साइड भी रेड है, ये लेकिन बीच में एक वाइट लाइन आया हुआ है। दिस इज एन एसेंट्रिक सेल और ब्लिस्टर सेल, ठीक है। किस कंडीशन में पाया जाता है? तो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। NGO is usually NGO stands for any conditions related to vessels. एंजियोपैथिक वो कंडीशंस जिसमें वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में मॉर्फोलॉजी आ जाए। माइक्रो एंजियोपैथिक रेफरिंग टू कैपिलरीज। और हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलिसिस द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो दिस कंडीशन माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, वो एनीमिया जो कि हेमोलिसिस की वजह से हुआ हो, लेकिन हेमोलिसिस किस वजह से हो रही है? उस वजह से जिसमें कैपिलरीज में या माइक्रो वेसल्स जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से फिर सेल्स की मॉर्फोलॉजी खराब होती है फिर।